located at ICT. We have Bangalore, Coimbatore, Mysore, and Indore, Pune, and Navi Mumbai. So I'm very happy to introduce our doctor, Dr. Jyoti Gupta. She is the senior consultant. She is also IVF and fertility specialist doctor. So Dr. Jyoti, over to you. And I'm sure she will share her valuable, feedback and some awareness about women's health. कैसे हैं आप? So let's. Thank you everyone for taking out time for your precious routine. So I will try to cover few things that we females ignore our health. It's always husbands and then parents and then in-laws and then our parents, and this is the least the female they care for themselves. So I try to cover all the age group because we have our daughters at home, daughter-in-law at home. So I try to cover all the age groups. तो जो भी आपको उसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क, ओके? So from family to careers, typically the last area people attend are their own health. They focus instead on their partner and the children. But we always say take care of yourself first. जब बोला जाता है ना कि दूसरों की सहायता मास्क बनाने से पहले खुद अपना कीजिए, तो वही है। कहते हैं ना कि अगर तो फीमेल विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, वो ज़्यादा अच्छा घर मैनेज करेगी। अगर हम खुद ही बीमार होंगे तो वो एक आउटपुट भी नहीं निकलेगा एंड वी विल फ्रस्ट्रेटेड। एक जो सेटिस्फाई होते हैं आफ्टर डूइंग सम वर्क, वो चीज़ नहीं रहेगी। सो इट्स ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। सो टॉप वुमेन हेल्थ कंसर्न क्या है? ब्रेस्ट कैंसर, another is depression, heart disease, osteoporosis and autoimmune diseases. So we'll detail, tell us what is a risk factor and how to prevent that. Breast cancer is common both in male and females. Okay, breast cancer can occur in males also, but females it's more common. So aging women is common. Genetic history is important. If you have a family history of carcinoma in family, then it can happen. Family and personal history is important because in some studies it is associated with smoking a lot. So smoking and drinking, and what we can do to prevent that? We should have maintain a balanced diet, exercise, minimize alcohol consumption, and quit completely and quit smoking. Depression very common and it's very common after 40 years. When you are big, usually क्या होता था, हम क्या करते हैं कि when we are in initial years, initially when we get married, पहला सारा फोकस होता है husband and then your child. अपने आप को भूल जाती है, पूरा ही फोकस बच्चों These पे। days postpartum depression is just Very coming common. so in a vast number. But Yes. I haven't gone through with that, so I can relate to मैं this. वही बता रही कि why it happens because हमने क्या है इस जर्नी में, मदरहुड की जर्नी में, कि बच्चों पे इतना फोकस, पहले क्या स्कूल जा रहे हैं, फिर पढ़ाई, फिर कॉलेज, ट्यूशन, उनके डांस, अपने लिए टाइम नहीं निकाला। एंड देन व्हेन वी रीच, बच्चे कॉलेज चले गए, हस्बैंड चले गए ऑफिस, इन द मीन टाइम आपने बहुत बार करियर में भी ब्रेक लिया। आफ्टर 40 ना समटाइम्स एक तो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, पेरीमेनोपॉजल फेज है, जो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बिना घर नहीं चलता था एंड सडनली क्या चेंज आ जाता है, सबकी लाइफ आपके बिना भी चल रही है। वो जो एक फोकस थे आप, वो आप कहीं ना कहीं, बट आपके पास कुछ करने के लिए है भी नहीं बिकॉज योर ऑल होल फोकस वॉज योर हस्बैंड एंड किड्स आर इन बिजी इन देयर लाइफ, कॉलेज, मम्मा आपको नहीं पता, इट्स फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तो वो जो फोकस है ना, यू आर नॉट द प्राइमरी पर्सन हु आर, अब एवरीथिंग इज फ्रेंड्स, कॉलेज, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, यही रहेगा, आप रह गए उसमें, आप अकेले हो गए और आपने अपने आप को इन सालों में खो भी दिया। तो दैट लीड्स टू, एक तो हार्मोन चेंज हो रहे हैं एंड अनदर इज यही, एक तो हार्मोन का भी और ऊपर से आपकी घर पे फैमिली का, आप जो फोकस थे वो आप हट चुके हो, तो वो डिप्रेशन में है। सो फैमिली, अगर घर में किसी के पेरेंट्स को भी हिस्ट्री है फैमिली में, तभी ये आता है।
फ़ोन नंबर। सिवियर क्रॉनिक इलनेस, देखो क्रॉनिक इलनेस इसलिए बोल रही हूँ कि समटाइम्स द फीमेल्स दे आर सो एक्टिव एट होम, अगर कभी कभी बेड रिडन हो जाता है या जैसे ही हम किसी को चोट भी लग जाती है 2 महीने बेड पे बैठ जाए, दे स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड आई हैव सीन इट इन माय मदर। तो काम करने वाली लेडी जो है वो बेड पे बैठ जाए तो वो एक डिप्रेशन की मैं वो सबको खिला सकती है, बट उसको खिलाने के लिए सबको वो लग रहा है उसको एक अपने आप में गिल्ट है कि एवरीबॉडी इज डूइंग थिंग्स फॉर मी। तो एक ही क्रॉनिक इलनेस भी डिप्रेशन में क्यों, बिकॉज आपका रूटीन सेट था, यू कांट सिट एट पूरी बोलती रहेंगी आप लेडीज कि भाई मुझे वो बिठा के खिलाता नहीं, और जब बैठने के टाइम में यू ऑलवेज स्टार्ट कि यार व्हेन विल आई बिकम एक्टिव। ठीक है, ड्रग अब्यूज, अगर कोई ड्रग्स लेते हैं उससे भी डिप्रेशन होता है एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ दैट यू कांट स्टॉप। बिकॉज अगर मेरे पास में भी पेशेंट्स आते हैं ना IVF के, मैम स्ट्रेस इतना ज़्यादा इसलिए हो रहा है, मैंने कहा जब बच्चा पैदा होता है ना उसको भी स्ट्रेस होती है, पता दूध देगी कि माँ नहीं देगी। तो एवरी चाइल्ड every phase is having stress, but we know how to tackle it. So too much worrying and chronic anxiety, बहुत ज़्यादा stress लेना, and sometimes we say कि जो चीज़ होनी है वो होनी ही है, आपकी anxiety होनी है, stress से तो कोई चीज़ change नहीं होगी। So what we can do is finding a reason to live every day. ज़्यादा दूर का मत सोचो आज मैंने क्या करना है। So planning is very important. अगर आप डिप्रेशन है किसी को, don't, अगर आपको लग रहा है कि that what I suggest when somebody is not working or not, कोई बचपन की हॉबी होगी which you left in between, किसी को म्यूजिक सीखना था, पापा ने बोला बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, हस्बैंड ने बोला यार बच्चे पे फोकस करो, वो एक म्यूजिक या डांस था, आपके इनर हिडन टैलेंट था जो बड़ा प्रेज होता था, बट व्हेन यू गेट मैरिड तो ड्रीम्स वो पीछे रह गए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, बिकॉज अभी आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, जस्ट आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ, तो कीप योरसेल्फ बिजी। आई एम नॉट, दूर का मत सोच के चलो, दिन को प्लान करो कि आज ये करना है, ये करना है। बी पैशनेट एट योर जॉब, जो कर रहे हो बेस्ट करो, दूसरे को अप्रिशिएट ना करें, बट अगर हमने अच्छा काम किया है हम खुद भी खुश होंगे। फाइंड ए सिग्निफिकेंट अदर, कोई अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, जो दे रहा उसको तो दो। एंड अडॉप्ट ए पेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेट अडॉप्ट कर लो, बिकॉज कहते हैं ना कि डॉग्स आर मोर ऑनेस्ट नाउअडेज देन मैन। सो I volunteer for a cause. You all are doing volunteering for a cause, so that is also a way of combating your depression. Yes. Because आप अगर कहीं पे, for example, there are so many needy in the society. अगर हम किसी cause के साथ associate होते हैं, we make ourselves meaningful. कि यार हम अंदर मुझे ना बोलते तो एक चेयर है, ठीक है। हार्ट डिजीज important these days, चलते चलते आजकल you on your social media, he is so young, he expired, खेलते खेलते होता है। So it's important कि personal और family history में अगर किसी को BP, hypertension है तो don't ignore that, because most of the days क्या हो रहा है कि जैसे हम पहले बोलते थे 40 में illness आती है कुछ, nowadays 30s में 24 में भी आए हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म 30 to 35 या 37 के बीच में hysterectomy cases are increasing so badly. क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, बहुत कुछ हार्मोनल चेंजेस, PCOD, PCOS going next level. सारे ही हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। All these are the disease of the initially endometriosis was called as the disease of the rich. ठीक है, because we are not active, we are ordering from outside. और आजकल मैं वही बोल रही हूँ कि the patients 32, 30, 24, 26 में भी hypertension की medicines खा रहे हैं, because they are obese, सिर्फ घर बैठे हुए, they are watching, binge watching and ordering pizzas and burgers from outside. ये एक कैस्केड बन गया है। फिर मैम पेट रिड्यूस नहीं हो रहा, थोड़ा सा चलता हूँ थक जाता हूँ, जिम जाता हूँ थक जाता हूँ, आई वांटेड PT बट स्टिल हो नहीं रहा, फिर मैम थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर ऑर्डर करता हूँ, ये पूरा विशियस सर्कल है, तो वो ब्रेक ही नहीं हो रहा। मैम सारा दिन लैपटॉप पे बैठ के काम ही करना है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है, वी आर बाउंड टू। नहीं अभी बिकॉज आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, तो पेशेंट जब आते हैं ना तो यही चीज़ मुझे बताते हैं, मैम घर आता हूँ, मैम कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, तो हाउ यू
बच्चा कैसे होगा? हाँ ये सोचो कि मतलब बीइंग डॉक्टर्स 3 घंटे 4 घंटे सुबह ओपीडी 3-4 घंटे शाम को ओपीडी, हमने भी तो चेयर पे बैठ ही रहना है। और ये मैम हिम्मत ही नहीं है, तो फिर मैम बिकॉज मैम फिर घर आते ना खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती, मैम जिम कौन जाए, वी ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। और फिर मैम रात को ही तो टाइम मिलता है स्पेंड करने का, तो फिर उसके बाद फिर ऑर्डर हो रहे हैं मैम, रात को 12-1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, फिर मैम 9 बजे 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे से मेरी शिफ्ट होती है। और समटाइम द नाइट शिफ्ट आर गोइंग ऑन बिकॉज इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो वो नाइट शिफ्ट चल रही है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज सो कॉमन दीज डेज, 24-25 पे हाइपरटेंशन आ रही है, एंड दे वांट टू डू समथिंग बट हो नहीं रहा। पता है गलत है बट रोक नहीं लग रही। सो हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डोंट इग्नोर। और बहुत बार क्या है कि बीपी होता है, पेशेंट मेडिसिन नहीं लेते कि जिंदगी भर की बन जाएगी। बट वे मैम अभी ना ऐसे ही हेल्थ से कंट्रोल कर रहा हूँ, और दवाई आप नहीं ले रहे हो, हाइपरटेंशन आपका बीपी 170-180 इतना ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक चल रहा है, आप इतने हाई बीपी में ऑर्गन्स आर अफेक्टेड ना। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे 40 में, तब ऑलरेडी किडनी इफेक्टेड होगी, हार्ट इफेक्टेड होगा। सो अर्ली डायग्नोस एंड अर्ली ट्रीटमेंट बहुत चीज़ें। देखो हर बार कोई मेडिसिन अगर आपका बीपी कंट्रोल होता है स्टार्टिंग में, तो बहुत बार मेडिसिन रिड्यूस होकर बंद भी होती है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज द सोल्यूशन। टू मच कोलेस्ट्रॉल विच आई एम सेइंग कि बाहर का खाना, देखो बाहर का खाना और घर के खाने में फ़र्क होता है। वी पुट ऑयल मेजरमेंट से, और जो बाहर है उन्होंने तो खाना टेस्टी बनाएंगे तभी तो उनका रेस्टोरेंट चलेगा, बट विद दे ऐड सो मच बटर, सो मच cream. Not necessary. I'm going to protest because I'm running a cloud kitchen. Now because you are a mother. I'm a mother, I'm a grandmother, I'm everything. So मैम वो एक मैम नॉट क्लाउड किचन, मैम तभी तो मदर किचन चल रही है, अभी तो होम कुक्स का और क्लाउड किचन का तो एवरीबॉडी प्रेफर्स दैट, बट आई एम टॉकिंग टू द रेस्टोरेंट्स, दे आर नॉट डूइंग, समटाइम्स दे आर नॉट डूइंग जस्टिस टू व्हाट वो खुद अभी आई heard a podcast of some popular chef, they said कि हम ना करी ना महीनों की बना के रखते हैं, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मैम 15 मिनट में कोई करी नहीं बना के दे सकता, हाफ एन आवर में आपके घर पे डिलीवर होना हाउस इज पॉसिबल। एक वीडियो ना ऐसे लंबी बना के देना इंस्टाग्राम और में। एक और है कि शार्क टैंक में भी जब आए थे तो व्हाई हाउ कैन दे कीप द फ्लेवर्स ऑफ एवरी रेस्टोरेंट सिमिलर, just they make the curry, they extremely froze it and then dry जो भी ये करते हैं, and then they deliver in all the centers जो भी इनके outlets हैं। And lack of physical activity I already told you, and smoking क्योंकि stress बहुत है काम में, और they are sitting in my OPD in the waiting period में, जैसे if I call them, ma'am husband is upstairs, वो मतलब 15 मिनट में they can't even sit without smoke। और फिर कहते पोल्यूशन है। Yes, मतलब मैंने कहा चेन स्मोकर्स आते हैं, and infertility तो भर भर के है स्मोकर्स में। Males are getting more affected these days. Females are also because उनका दिखता नहीं है, स्पर्म तो टेस्टिंग हो जाती है उस साइड, IVF को जाके पता चलता है। So both it's very low. And what we can do is exercise, balanced diet, quit smoking, get enough sleep. That is important. Sleep, 8 to 10 hours sleep is very, 7 to 8 minimum is required. And control cholesterol. So osteoporosis, very common. Gender, it's common in females more than males. So old age, बिकॉज आपके पास मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लैक हो जाता है, एंड द बोन की जो वेयर एंड टेयर है स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो वीक बोन्स, एस्ट्रोजन लॉस ड्यू टू मीनोपॉज एंड इनसफिशिएंट कैल्शियम। व्हाट वी सजेस्ट कि जब भी मीनोपॉज होता है वी ऑलवेज सजेस्ट कि आपको अगर आप 2000 आपको, जैसे अगर आप एक कैल्शियम की टैबलेट हम हर एक लेडी को बोलते रहने के लिए, आप तो दो लें, और आपको डाइट से 1000 mg लेना है, मतलब यू हैव टू टेक कर्ड, यू हैव टू टेक पनीर, जिनमें भी कैल्शियम सोर्सेज है। दूध अगर नहीं होता तो देन यू हैव टू अदर थिंग्स, बट यू हैव टू टेक, अगर आप ओरली आपको लेना ही है। यस सर, We can take supplements. यस सप्लीमेंट्स वही बता रही हूँ, अगर हम यंग लेडी को एक प्रिस्क्राइब करते हैं तो
मेनोपॉज के बाद इट्स यू हैव टू डबल। जैसे आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि डोंट टेक मिल्क, सो इज इट ट्रू? तो take curd देखो or ये बिकॉज we- आई हैव सीन कि जैसे मेरे जो मतलब मदर और फादर इन लॉ वो तो रोते ही थे दूध के बिना, दे हैव टू टेक वो लोग तो बिना दूध के because नहीं रह nowadays lactose intolerance हो सकते। रही है, ये सारी चीजें थोड़ी gut issues are coming. So एक time जो हम खाने में pesticides खा रहे हैं और हमारी एक्टिविटी स्लो हो गई है, तो हमारी बॉडी ने रिएक्शंस करना शुरू कर दिया। so milk में पहले तो आपने गाना सुना ना पीएच वाली चीज, उस वजह से। अच्छा एक और चीज है ना कि तो पहले जो हम दूध ले रहे थे दैट वाज इन प्यूरिफाइड फॉर्म, नाउडेज टू कमर्शियलाइज पहले से ऑक्सीटोसिन होता है उसके अंदर। यस गाय भैंसों को इंजेक्शन लगा के दूध दे रहे हो, गाय भैंस तो चारा खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स है। ये जो इंजेक्शंस आजकल ऑक्सीटोसिन एंड अदर BHCP कुछ ऐसा इंजेक्शन है, ग्रोथ हार्मोन दे आल्सो गिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल लेवल पे। सो ये फीमेल्स में छोटी बच्चों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी ला रहा है। हाँ, जो 8, 9, 7 इयर्स पे आजकल थोड़ा सा one of the reason is associated with that also. So पहले गाय भैंसों को दूध ज्यादा चाहिए और इंजेक्शन लगा रही है। so ये थोड़ा सा है, बॉडी में आगे ज्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो गए किसी की बॉडी में, परेशानी था, जितना थोड़ा केमिकल्स सा की तरफ ऑटोइम्यून जा रहे हैं। डिजीजेस का रिस्क बढ़ा है। So what we can do, enrich calcium intake and get enough vitamin D. As for vitamin D, I would like to ask you a question. Yes, You just said you should take 2 tablets if you are in your menopause. Now, wouldn't it be over? no. Because that will in any case come out if it's going over No, it is not going. That's why I'm suggesting 2,000 mg you have to take, and one tablet is usually 500 mg. And sometimes it's 250 mg also. 250. it would be effect on our weight also. I No, think the it calcium will is not going. अगर excess में होगी, it will be excreted out. But your bones are already so much weak. Estrogen नहीं होता, उसके बाद loss होना And there शुरू is no relation between calcium or weight management. No. बट ये जो है ना कि विटामिन डी, आजकल देखो पहले फीमेल्स नहीं मैं विटामिन डी चेक कराती थी, बट नाउ आई स्टार्टेड चेकिंग इन मेल्स आल्सो, फीमेल्स टू माय सरप्राइज मेल्स आर मोर डेफिशिएंट देन more deficient. यस। अगर हम नॉर्मल वैल्यू 30 बोलते हैं, 30 बोलते हैं नॉर्मल, अगर हम Because see, you don't sit up insufficiency in the है, sun. You are in indoor exposure. एक्सपोजर नहीं कौन है, सा चाहिए? अर्ली मॉर्निंग, डॉन और डस्क सन चाहिए। उस टाइम पे कौन बाहर है? बिकॉज मोर ऑफ द टाइम हम But still I That's why got it's osteoporosis. Still I got osteoporosis. वो कुछ Exceptions change are ही everywhere. नहीं है। And ma'am, one more thing, अगर एक बार किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई, किसी भी विटामिन मिनरल की, तो फिर वो लाइफ टाइम रहता है, right? ऐसा कुछ नहीं, आप सप्लीमेंट लेंगे तो इट विल बी बेटर। विटामिन डी के जैसे सिम्पटम्स हैं व्हाट आई मतलब गेट फ्रॉम हिस्ट्री, दैट्स व्हाई मैम शाम को ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है, स्टेयर्स उतरता हूँ, बैकएक, ये मेल्स की हिस्ट्री है, टॉकिंग अबाउट 27 to 28 years के, कि मैम बैकएक, काम में बहुत दर्द जा रहा है, मैम बस मन करता है सोए रहूँ, और सिमिलर फीमेल्स में हिस्ट्री कि उठते हैं, यस मैम पीठ में दर्द है, थोड़ा सा वॉक करती हूँ तो बैकएक शुरू हो जाता है, एंड व्हेन आई गेट द विटामिन डी चेक्ड, इट्स ऑलवेज 12:30 एंड मेल्स का 6-7, to my surprise कि मेल्स का मैक्सिमम मेल्स का, then I don't give them supplement, I give them injections हाँ। कि इतना orally इतना absorb नहीं होगा, but अगर आपका maintenance 20 to 30 के बीच में then take orally, जो आप once in a week हम बोलते हैं, क्योंकि ये विटामिन डी एक ऐसा है जो विदाउट टेस्ट नहीं लेना है, because excess of this lead to vitaminosis, that बाकी हम B12 ले लें या हम जैसे यू आर सेइंग कि कैल्शियम ये हम एक्सेस में ले सकते हैं, बिकॉज बॉडी को उतना रिक्वायरमेंट नहीं, आयरन भी तो वो एक्सक्रीट आउट होता है, बट विटामिन डी हम एक्सेस में नहीं ले सकते, बिकॉज ऑल दीज आर वाटर सॉल्युबल, बट विटामिन डी जो है और विटामिन ए दे आर फैट सॉल्युबल, तो वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेने हैं। समटाइम्स होता है ना यार मैंने इंजेक्शन ली तू भी ले, ऐसे भी ये होता है ना कि यार मेरे डॉक्टर बोला मैं फिट हो गया, But generally after what age vitamin D supplements हमें ले लेने चाहिए अगर हमें Get bone your- pain जब भी आप हेल्थ चेकअप करवाते हैं हाँ। एनुअली आपको करवाना है, एंड व्हेन यू आर अबव 50 समटाइम्स इट विल सजेस्ट अगर कोई हेल्थ डिजीज है तो 6 मंथली भी करवाइए, ठीक है, और जो टेस्ट खराब आता है उसको आपको 3 मंथ या 6 मंथ्स पे रिपीट कराना है। फॉर एग्जांपल यू आर डायबिटिक,
get your HbA1c every 3 months. आप for example your thyroid, you are having thyroid, तो get your TSH every 3rd month. अगर आपने सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं then annually is better. विटामिन डी कम आता है, इंजेक्शन अगर बहुत कम है टेक इंजेक्शन एंड देन अगर वो 1 मंथ के बाद चेक कराओ इट्स देन वी गिव देम मेंटेनेंस देम ऑन पुट देम ऑन मेंटेनेंस. ठीक है. मैं मतलब क्या मतलब स्टोन की टेंडेंसी हो फिर कैल्शियम क्या ले सकते हैं? तो स्टोन का कैल्शियम से कोई लिमिट आप बाकी चीजों पे भी नहीं है. स्टोन के लिए देखो अगर कुछ पर्टिकुलर साइज है देन यू हैव टू रिमूव उसमें कोई सॉल्यूशन कैल्शियम के साथ एसोसिएट है वो ऑक्सलेट्स के साथ होता है. But ma'am, calcium का CS formula is best ना? It's safer side for the stone patients also. सिर्फ एक स्टोन की वजह से कैल्शियम लेना बाकी आपके बोन पे भी तो इफेक्ट है ना. तो कहते हैं कि यूजुअली रीनल स्टोन और गॉलब्लैडर स्टोन से यूजुअली अगर बहुत छोटे हैं बहुत वो पानी ज़्यादा बोला जाता है कि निकले. अगर साइज पर्टिकुलर साइज है उसके ऊपर तो सर्जन यूजुअली एडवाइस करते हैं. बॉल में तो निकालना ही पड़ता है ना, आपको रिमूव तो करना है. मतलब वो कोलेस्ट्रॉल वाला थोड़ा सा होता है तो बहुत अगर सिंगल है मल्टीपल है तो वो सीबीडी में जाके फंसे या अगर रीनल स्टोन है वो जाके यूरेथ्रा में फंसे फिर वो इमरजेंसी में जाना. सो पर्टिकुलर साइज होता है उस पर डिसाइड होता है. देन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. So reason is not known, still not known, because your body is fighting with your own cells. So उसमें hormonal, genetic and environmental factors are suspects. Keep your digestive tract healthy. ये जो celiac disease होती है कि कुछ भी खाते हैं तो जाना पड़ता है washroom, तो उसमें autoimmune disease है. ठीक है, celiac disease हो गई किसी को कुछ नहीं पचता कुछ भी खाते तो पेट पूरा खराब bloating रहती है. gluten Yes. So chew your food properly, thoroughly, and protein intake बढ़ाइए. ये आप सजेस्ट किया जाता है. Eat vegetable, fruits and whole grains, and rest and sleep. Sleep is very important, very very important. क्योंकि आधी और stress. मैम स्लीप ज्यादा है उसके लिए क्या है? जैसे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बेड पे जाती हूँ और मुझे 2 मिनट बाद लेट हो जाती है और मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई स्लीप के ऊपर है. तो ज्यादा कभी भी सजेस्ट नहीं है. अरे भाई मैं तो शायद ब्लेस्ड हूँ लेकिन मेरी तो लड़ाई इसी बात के ऊपर मैं वही बोल रही हूँ, पहले आप एक बार सारे टेस्ट कराओ. बहुत बार टेस्ट की वजह से भी पेशेंट आप ये मुझे हिस्ट्री ये भी दी गई है. मैं उठती हूँ हस्बैंड को भेजती हूँ बच्चों को स्कूल भेजती हूँ मैं स्लीप हो गई. नहीं नहीं ऐसा नहीं, ओनली नाइट में. नाइट में से आप टायर्ड हो जाते हैं. मेरे को भी 10:30 के बाद नींद आ जाती है. 9 बजे कुछ नहीं हो सकता. तो अच्छी साइकिल चलाते हैं. मैं भी पहले 5 बजे उठोगे फिर 8 आवर्स की स्लीप कैसे कंप्लीट होगी? लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट उस टाइम पे कोई कुछ बोले या कोई कुछ भी वैसे आप एक हेल्दी तो यू हैव टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री फॉर योरसेल्फ. अच्छी बात है ये तो, बिकॉज़ योर बॉडी इज इन रिदम. बेस्ट थिंग. आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. आप सोचो ना, मतलब मुझे तो ये चीज अभी तक समझ नहीं आई. एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब से हम 4 या 5 इयर्स के हुए और जब तक हम 18 इयर्स के हुए स्कूल में हमें प्रॉपर ये सिखाया. हाँ ठीक है, और जैसे ही हम 18 के हुए हम जॉब में आए या फैमिली में आए अपने टाइम मनी और एफर्ट सारा जीरो कर दिया. राइट. हो जाता है. थायराइड आपका कंट्रोल नहीं है. हेल्थ तो सेकेंडरी हो गई. वो सेकेंडरी हो जाती है. कंट्रोल नहीं है. बहुत और तीसरा बहुत बड़ा रीजन शुरू कर दिया बिकॉज़ हम सबको करने के लिए ना अपनी हेल्थ सेकेंडरी कर रहे हैं. That is what she started. That's what she started. Now we have to take a charge because we are the backbone. एक दिन हम बीमार होंगे नौकरी के लिए आपके सेंसेस भूख तो लगती ही नहीं. चाय आपने लास्ट कोई भी प्रोफेशनल कोर्स मेडिकल लॉयर का कुछ भी लगा दो. सबके क्लासेस में 8 बजे नौकरी शुरू हो रही है. आप लेट हो गए तो मेरी तो सैटरडे से होने तो 10 बजे ना. So family history is very important. घर में जो disease है, because every disease has some genetic relation, so history is very important. ठीक है. Educating themselves on health issues क्या है आपके साथ education उसके बारे में, because knowledge होना it's very important, because certain things आप kitchen से ही solution निकाल सकते हो और छोटी छोटी habits से correct हो सकती है. And paying attention to your body. Body अगर कह रही है कि
पेन है तो डोंट इग्नोर समटाइम्स। तो अगर आपको सिम्टम पूरे ग्रेव होने पे डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि पहले ही एक सिंपल मेडिसिन से भी करेक्ट हो सकता है। और ये ना मम्मियाँ ही सिखाती है बचपन से कि पेन हो रहा है कल जाओगे डॉक्टर के पास, अरे चल छोड़ ना अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं वही बता मतलब I've रही seen my mother ignoring to the next level, और फिर वो मम्मियों से बेटियों में आता है, फिर बेटियों से फिर नेक्स्ट बेटियों में जा रहा है। ये चेन सिस्टम जेनेटिकली फीमेल्स ने क्रिएट करा हुआ है। लास्ट पर्सन टू टेक केयर इज द और वो एवरी सासू माँ, हमें कुछ होता था ना हम किसी को कुछ नहीं कहते थे, हम घरेलू इलाज कर देते थे। हम तो कभी हॉस्पिटल नहीं गए। हम तो हॉस्पिटल चले गए। So what is wellness? Wellness is the harmony of body and mind. So that's important. Well balanced nutrition diet is important for wellness. Physical fitness very important, and lifestyle and stress management. ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो wellness रहेगी. So puberty to menopause female बहुत सारे phases में जाती है. So teenagers में देखिए टीनेजर्स में क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो menstrual hygiene, but I don't think I'll find any teenager here, so we'll skip in the But we have teenagers at our home. ठीक है। So menstrual hygiene देखिए ये अगर जब भी puberty आती है उस टाइम पे जो पेशेंट सेज या मदर्स आ जाती है वरीड होके कि मैम उसको पीरियड ना 2 महीने नहीं आए हैं या महीने में 2 बार आ गए हैं, तो फर्स्ट 2 इयर्स में कुछ नहीं है। अभी उनका HPO एक्सेस ब्रेन जो है वो अभी वो बन रहा है, समझ लो वो एक साइकिल बन रहा है कि इस मंथ में बिकॉज सब कुछ तो पिट्यूटरी से ग्लैंड से ही हो रहा है, तो अभी वो एक्सेस अभी मैच्योरेशन हो रहा है। तो समटाइम डोंट गेट पैनिक किया। अब डॉक्टर के पास गायनी के पास बहुत ज़्यादा विजिट करना शुरू हो जाता है कि मैम 3 महीने से ब्रेड नहीं आएगा, इस महीने में 4 बार आ गया। जस्ट गिव देम गुड डाइट, आयरन सप्लीमेंटेशन दे सकते हो कि HB लॉस हो रहा है, बाकी उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है फर्स्ट 2 इयर्स में। ओके ठीक है। Iron and calcium. कैल्शियम नॉट नेसेसरी क्योंकि बच्चे दूध और डाइट वगैरह से ले लेते हैं, अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आयरन आप दे सकते हो। बाकी 2 इयर्स फर्स्ट 2 इयर्स में देयर इज नो नीड ऑफ, अगर महीने में 3 बार भी हो रहा है, 3 महीने में 1 बार भी नहीं हुआ, तो क्योंकि 2 साल HPO एक्सेस को मैचुरेशन के लिए लगते हैं। HPV इंजेक्शन नाउडेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर यंग फीमेल्स को लेना है, इवन 45 इयर्स तक भी ले सकते, डिफरेंट इंजेक्शन है। प्यूबर्टल प्रॉब्लम्स, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, PCOS, बिकॉज हेल्दी वेट मेंटेन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मतलब एक्टिविटी में कुछ ना कुछ, क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी ये टीनेजर आते हैं तो फ़ोन पे ज़्यादा स्पेंड टाइम होता है, फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, पढ़ाई ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसी से कि अगर इनका फिजिकल एक्टिव होंगे, वेट कंट्रोल रहेगा। PCOS का फर्स्ट ट्रीटमेंट इज ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और वही पॉलीसिस्टिक ओवरी होगी। वो सारा ये भी है कि मैम मम्मा मेरे को बाल आ रहे हैं ज़्यादा, मेरे को पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं, देन दे गो टू डर्मेट, बट वी हैव टू करेक्ट द रूट कॉज। रूट कॉज इज जस्ट डाइट मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज। ओके, उस अगर आप ज़्यादा मतलब हम पॉसिबल्स पे डाल देते हैं, पीरियड आएंगे, हर महीने पीरियड आएंगे, हार्मोन्स कंट्रोल हो जाएंगे, बट यंग फीमेल्स को पॉसिबल्स पे नहीं प्रेफर करते हैं। तो व्हाट वी सजेस्ट है टू लाइक रिड्यूस 5 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट। जस्ट वो अगर मैम कोई अंडरवेट भी है गर्ल, मतलब लीन फीचर्स भी होता है, लीन फीचर देखो उसमें भी अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं, पीरियड में देखो 2 कारण है। एक बार तो सोनोग्राफी तो ऑफ कोर्स एक एडवाइस हम करेंगे, बिकॉज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व बस स्टार्टिंग में 2 इयर्स यू से कि बस कुछ नहीं करती है ना। लेट उसके बाद अगर हो रहा है देन अगर PCOS रूल आउट करना है हमें, तो वो एक बार स्कैनिंग और बस जस्ट बी एक्टिव। देखो 2 तरह के PCOS होते हैं, वन इज की लाइक ओबीज PCOS, उसमें वेट रिडक्शन। एक होती है लीन PCOS, उसमें क्या है कि अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पे फैट बहुत ज़्यादा होता है एंड दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट। लीन पेशेंट विद PCOS, वो हम जब IVF भी करते हैं उनको स्टिमुलेट करना ज़्यादा रिस्की है, या उनको ट्रीट करना वो हमारे लिए थोड़ा वो है, तो इसलिए उनके अंदर क्या है विसरल ऑर्गन्स पे फैट ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा होता है। यस उनको भी वेट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
20s and 30s, because it's contraception is very important, because nobody wants a like unplanned pregnancy these days. So आज contraceptive में basket of contraceptive is available. If you don't want a pregnancy, meet your gynaec and suggest कि आपको कौन सा आपको आपकी preference के according आपको बता देंगे. So and then plan pregnancy plan की जाए, because क्या हो रहा है कि आजकल what we have seen कि nowadays every hospital is under scrutiny for MTPs. और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, साइन वगैरह लेते हैं, sometimes we see unmarried females coming to us. मतलब not to me, मेरे पास IVF में नहीं आते ऊपर, है ना, but we have seen कि they are coming with their boyfriends. But हम जब सिग्नेचर की बारी आती है, because anonymous हम आइडेंटिटी रखते हैं, the boyfriends on the day of abortion they ran. फिर they don't want to inform their family कि मैम हमने फैमिली को बताया ही नहीं है कि abortion that I am pregnant. फिर उस टाइम पे who is responsible? उस टाइम पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब हम बोलेंगे अबॉर्शन करा लो कि अंदर हम हॉस्पिटल में एंटीपीपी ओवर द काउंटर खा के आ जाएंगे मेडिसिन. अगर गॉड फॉरबिड अगर एक्टॉपिक हुई, एक्टॉपिक मींस ट्यूब में प्रेगनेंसी है, उस टाइम पे लाइफ आ जाएगी, इन्वॉल्व हो जाती है, समटाइम्स थ्रेटनिंग ऑल्सो. तो वो दे कम विदाउट अटेंडेंट, और फिर देन वी वांट सिग्नेचर, देन दे रन अवे कि सिग्नेचर लिए जा रहे हैं, देन दे गो टू सम लाइक क्वैक्स एंड ऑल, ओवर द काउंटर ड्रग खा लेंगे, फिर देन दे लैंड अप इन इमरजेंसी होंगे. ये चीज़ें हो रही हैं. सो वो फिर पेरेंट्स को तो पता भी नहीं, और द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल अनदर पार्टनर इज नॉट अवेलेबल. तो सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट ब्रिंग सम फ्रेंड एंड ऑल्सो हु कैन टेक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सम अनटूवर्ड हैपन. Regular pap smear is important to rule out cervical cancer. So मैम ये जो ड्यूरेशन है पैप स्मेयर की, मतलब आप कैसे सजेस्ट करते हो कितनी ड्यूरेशन में करवाना चाहिए? देखो 30 to 40 मिनट्स मतलब 3 इयर्स पे अगर 3 सालों के बाद एक करवाना है, वो एज वाइज है. मतलब अगर आप 30 to 40 के बीच में, हाँ 3 साल के बाद. एंड आफ्टर 40 फिर आपको एनुअली विच HPV की मतलब स्क्रीनिंग. रूबेला स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर समबडी इज प्लानिंग रूबेला IgG इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्योंकि बहुत बार क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला की इन्फेक्शन हो जाती है एंड बेबीज आर नॉर्मलस. तो बेटर जब भी आप कंसीव कर रहे हैं या प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई टेस्ट, अगर आपकी बॉडी इज नॉट इम्यून टू रूबेला, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड फॉर दैट बिफोर प्रेगनेंसी. एंड फॉलिक एसिड फॉर टू बी मॉम्स जो भी हैं, क्योंकि हम ऑलवेज प्रे कि बच्चा चाहे भगवान जो भी दे हेल्दी दे, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो फॉलिक एसिड प्री कंसेप्शन फॉर एटलीस्ट 3 months तक आप स्टार्ट कर सकते. ठीक है. सो नाउ 20 and 30 इज द टाइम टू चूज वेदर टू फोकस ऑन देयर करियर्स. ऑन जितना मर्जी हम बोलें, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी जो है वो बैक कर देती है. समटाइम्स द पेशेंट दे विजिट अस फॉर कि मैम मेरी प्रमोशन अवेटेड है. इफ आई told them tell them कि मैं I'm pregnant, मैम शायद मैं प्रमोट ना हो, तो मैं then we suggest them like fertility preservation, because nowadays the patients are getting late married. COD partner अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ separation बहुत ज़्यादा है. So some because ये सारी चीज़ें ना age तो we can't stop. ये जो बोलते हैं ना पहले कि बायोलॉजिकल क्लॉक ना होता, फीमेल्स आर सेइंग कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, हम जब माँ बनना चाहते हैं, बट आते हैं 40 ईयर्स में भी आते हैं, देन वी आर फाइटिंग टू one egg. मैं ये करना है IVF में निकाल रही हूँ, देन उनसे ज़्यादा हार्ट अटैक मेरा चल रहा होता है कि मैं मिल जाए अंडा, और वो भी अच्छी क्वालिटी का. फिर उसमें कंजेंशन नॉर्मली बनती है, बच्चे में एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता. सो व्हेन यू हैव थिंग्स इन, फिर आगे बोलेंगे मैम वो उसने तो 42 में किया करीना ने, मैम उसने उससे किया प्रीति में, तो वो IVF उन्होंने फ्रीज करवाए थे एम्ब्रियो. आई डोंट नो अबाउट करीना, बट बाकी सबने तो बाद में ओपन किया ना, दैट दे गेट सरोगेसी के थ्रू या अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करवाए थे. सो व्हेन यू हैव गुड नंबर ऑफ एग्स, सब इंश्योरेंस कराते हैं, तो गेट योर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑल्सो. तो दैट इज माई सजेशन टू एवरी लेडी. अब आगे जब 38-39 पे मैम
शादी को तो 10 साल हो गए, बट वी आर नॉट सीरियस मैम, बट अभी सारे फ्रेंड्स सर्कल के हो रहे हैं तो वी आर थिंकिंग वी विल गो अहेड। सो AMH ही नहीं होता, AMH इज एंटी मलेरियन यहाँ पे, दैट इज़ वेरी वेरी, अगर आप प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर रहे हैं या गेट योर AMH टेस्ट, वो माई सजेशन टू एवरी लेडी कि अगर आप प्रेगनेंसी अपनी नहीं प्लान करना चाहते, आई एम नॉट सेइंग कि दैट आप शादी हुई है इमीडिएटली प्लान कर रहे हो, बट एज ए डॉक्टर अगर नहीं प्लान कर रहे हो, गेट योर सेल्फ AMH टेस्ट, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले फर्टिलिटी। कभी कभी सिर्फ मेरे पास आ रही है कि मैम 2 महीने से पीरियड नहीं आया, एंड डू स्कैन, यार तुम्हारी ओवरी ऐसे है जैसे 42 ईयर की फीमेल के 32, मतलब अब आप बोल रहे हो ना पीरियड नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई सजेस्टिंग स्कैन आल्सो। समटाइम पेशेंट को PCOS करके ट्रीट किया जाता है, व्हेन वी गेट हर AMH टेस्ट 2 घंटे, ये पहले ना हम AMH टेस्ट कराते ही नहीं थे कि 35, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक, हम AMH टेस्ट नहीं कराते थे कि 35 के बाद ही कराएंगे, बट नाउअडेज वी हैव सीन 23-24 में भी AMH जो है वो 0.3-0.4 चल रहा है, नॉर्मली 3-4, मतलब 3-2 के ऊपर हम अच्छा हैं। बट मैम अर्ली एज में जो प्रेगनेंसी होती है वो बड़ी हेल्दी होती है ना? मतलब ऑफ कोर्स बेस्ट टाइम हम बोलते Best हैं, time बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज इज 20 to 30, एग्जैक्टली। बट अब देखो हर कोई इस टाइम में, बिकॉज ये करियर मेकिंग ईयर भी तो है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम क्लियर कर रहे हो, या मतलब प्रोफेशनल कोर्स में हो, या अभी आप जस्ट एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही कर रहे हो, तो यू डोंट वांट कि अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, बिकॉज बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर आप डिले कर रहे हो, टेक इन्फॉर्म डिसीजन, दैट इज माई एडवाइस टू एवरीवन। बाद में जब आप प्लान करो फिर उस टाइम पे शॉक मिलता है कि फिर हमें समटाइम्स वी सजेस्ट देम टू प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, गो फॉर IVF। अभी तो हम मिले थे, अभी तो हमने प्लान भी नहीं किया नेचुरल, भाई अंडे थोड़ी वेस्ट करने हैं, जो 2-4 दिख रहे हैं एटलीस्ट प्रिजर्व देम एंड देन ट्राई नेचुरली, ये भी सजेस्ट होती है, बट पीपल थिंक कि डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं, हमने तो ट्राई नेचुरल, एंड व्हेन दे कम बैक आफ्टर 1 year टू अस, तब मेरे पास है नहीं होता, देन वी हैव टू सजेस्ट देम थर्ड पार्टी कि डोनर पे चलो। ये होता है बिकॉज दे गो टू सम अदर डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, उसने बोला नहीं अभी तो ट्राई करना, तुमने स्टार्ट ही किया, जस्ट वेट फॉर। हम बहुत बार ये भी बोलते हैं कि हैव यू यूज्ड एनी कंट्रासेप्टिव? नो मैम, ट्राई मैम, प्लान नहीं कर रहे थे बट कंट्रासेप्टिव भी यूज नहीं किया, बट एक बार तो कंट्रासेप्टिव फेलियर होगा ना, कभी भी नहीं हुआ, इट मींस देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी आल्सो। सो व्हेन somebody is delaying pregnancy, get yourself AMH test, that's it. ठीक है। ओवम प्रिजर्वेशन इज फॉर दोज लेडीज हु आर अनमैरिड, सेपरेटेड, पार्टनर्स अभी नहीं है उनके लिए, एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग इज फॉर मैरिड लेडीज जो जिनके पार्टनर्स हैं। तो ओवम क्या होता है कि हम उनको इंजेक्शन देते हैं, वो टेक आउट एग्स फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन फ्रीज इट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, फ्रीज कर सकते हैं जब उनकी शादी हो जाए तो, बट वो इट्स नॉट कि आगे वो नेचुरल ट्राई नहीं कर सकती, शादी हो गई ट्राई कर लो, नेचुरल हो गया ठीक है, नहीं तो एग्स तो पड़ेगा। Fertility preservation, this is necessary for also for those women with malignancy or other illness, treatment of which can be gonadotoxin, जैसे for example some patients having some cancer, तो treatment चल रही है, तो बहुत बार फिर conceive नहीं होता बाद में, क्योंकि वो सारे ovaries और sperms को affect कर देता है, even for boys I'm saying। तो before starting treatment sometimes it's always, मतलब सारे ही अब कीमा जो भी डॉक्टर्स हैं oncologist they refer to us, आप इसको फ्रीज कर दीजिए। मे बी तो अभी राइट नाउ यू नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी, अभी तो आप कैंसर ट्रीटमेंट, बट अब इन नेक्स्ट 5 years you want to plan to solve this. It was similar with sperms also. The women who want to delay childbearing also go for socialite freezing, and women who have a history of premature ovarian failure family may go for fertility preservation. This is important because sometimes the patient will come to us कि मैम हमारे ना मम्मा की 32 में ही पीरियड्स बंद हो गए, तो ये सिमिलर थोड़े दिन पहले एक लेडी आई मेरे पास, मैम ना पीरियड नहीं आए 2 महीने से, आई जस्ट डिड द स्कैन, शी वाज 28 years, so she has a 1 year 1.5 year की एक ऑलरेडी डॉटर थी उनके पास। आई जस्ट डिड वन स्कैन, मैंने कहा यू आर 28 बट योर ओवरीज लुकिंग वेरी एज्ड, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक तरफ 2 अंडे दिख रहे, एक तरफ सिस्ट दिख रही, सो मैंने आस्क्ड तो शी वाज लिटिल शॉक्ड, शी सेड कि मैम, फिर उसने रिकॉल किया कि मेरी मम्मा के भी मैम 32 में बंद हुए, फिर मैंने कहा यू वांट अनदर किड? यस,
तो मैंने कहा ये फिर अभी से प्लान करो एंड आफ्टर 6 months शी केम टू मी विद अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी स्कैन के लिए फिर मैम आई कंसिडर योर एडवाइस एंड हमने प्लान करना शुरू कर दिया तो शी इज नाउ प्रेग्नेंट। तो बहुत बार प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की हिस्ट्री है किसी मम्मा में या मासी में या फिर एल्डर सिस्टर को, तो एक बार एमएच करवा के या आप स्कैन करा के अगर कम आ रहा है, आप अभी यू आर नॉट मैरिड राइट नाउ या आप डिले कर रहे हो या अभी प्लान नहीं कर रहे हो, तो तब भी आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज वन, क्योंकि 32 में अगर फैमिली हिस्ट्री है ही। सो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट विथ प्री कंसेप्शन केयर, मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड, get early and regular prenatal care, be active and stay fit. If you smoke or drink alcohol, stop and avoid and control caffeine intake. 40 is a new young age because this is the age we discuss ourselves. That's why I'm saying कि 40 पे बच्चे स्कूल चले गए, यहाँ बड़े हो गए, husbands are busy in their life, work. That's a new young age because you discover yourself. So contraceptive one against because वो एक मूवी आई थी ना आयुष्मान की बधाई हो yes. So nobody wants pregnancy at late 40s when your kids are already teenager. So contraceptive one से menopausal symptoms are there, premenstrual symptoms होंगे, so it's important pregnancy to gain weight, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो ऑलवेज सजेस्ट कि आपकी कैलोरी इनटेक थोड़ा करना पड़ता है। जब आप मेनोपॉज अचीव करते हैं तो आपको कैलोरी थोड़ी सी, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2000 कैलोरीज लीजिए तो आपको 1200 कैलोरीज या 15 तक आना चाहिए। अब इफ यू आर कंज्यूमिंग 3 चपातीस टर्न देम टू 2, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि टेंडेंसी में यार खाती तो कुछ भी नहीं हो, लग ज़्यादा रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, टेंडेंसी टू गेन वेट। सो कंसिडर कैल्शियम एंड लिपिड प्रोफाइल, थोड़ा सा देखो सारे, अगर हम मेनोपॉज आ रहा है तो सारे सिस्टम भी स्लो हो रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी की क्लीनिंग कैपेसिटी है लिपिड वगैरह थोड़ा डिपॉजिट होना ज़्यादा हो जाता है। 50s हॉट फ्लशेस वगैरह ज़्यादा, मतलब वो यूजुअली किसी का 50 में आता है, किसी का 40s में ही आता है, तो फ्लशेस रहते हैं। दिस इज प्रीमेच्योर सिम्टम्स कि आपको आने वाले हैं कुछ सालों। So frequent UTI और vaginal dryness रहता है, so drink lot of water and अगर डायबिटिक है तो गेट शुगर कंट्रोल स्टिक रखे, बना बहुत कर्डी डिस्चार्ज की हिस्ट्री पेशेंट से काउंटेड कि मैम बिल्कुल वाइटिश कर्डी डिस्चार्ज आता है मुझे, तो वो इट मीन्स योर शुगर इज नॉट कंट्रोल, यू आर हैविंग फंगल इन्फेक्शन। सो नेचुरल ड्रॉप इन बोन डेंसिटी एंड नीड फॉर कैल्शियम, ऑल ऑफ इट। चेक फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बिकॉज बीमारी इस टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो एज रिलेटेड आनी ही हैं, कहीं ना कहीं सबकी फैमिली में डायबिटीज और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, सो ये कुछ हैं जो उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉच रखते हैं। सो मैमोग्राफी एंड बोन डेंसिटी स्कैन इज इम्पॉर्टेंट। 40 के बाद मैमोग्राफी सजेस्ट की जाती है, कोई लंप है या कुछ है तो यू हैव टू सेल्फ चेक एंड गेट मैमोग्राफी। नाउ लिटिल अबाउट इनफर्टिलिटी एंड IVF, थोड़े मिथ है कि IVF में अपना बच्चा नहीं होता, IVF में आपका अपना ही बच्चा होता है, एंड इफ वी टेक आउटसाइड थर्ड पार्टी तो प्रॉपर कंसेंट एंड इंडिकेशन के अकॉर्डिंगली। सो इट्स पेनलेस, कुछ लोगों को लगता है IVF इज़ वेरी पेनफुल, इट्स पेनलेस एंड विद न्यू ART बिल इट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिवेटेड। सो इंडिकेशंस, अगर किसी की जस्ट आई एम गोइंग थ्रू लेटर, क्या किसी की ट्यूब ब्लॉक है, देखो यूजली क्या होता है कि द फीमेल्स इज ऑलवेज कंसिडर, स्टिल मेल्स नहीं ज़्यादा, फीमेल्स दे यूजुअली कम एंड गेट सेल्फ चेक, बट मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 50% इज द मेल इज रिस्पॉन्सिबल एंड नाउ डेज मुझे तो नॉर्मल, मैं बस बता रही हूँ कि लास्ट 2-3 ईयर से मेरे को नॉर्मल स्पर्म देखे हुए बहुत देर हो गए, हम रिपोर्ट ही नहीं देख रहे नॉर्मल, टेराटोजोस्पर्मिया और लिगोसोस्पर्मिया ये सब में ही है बिकॉज लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, ड्रिंकिंग अल्कोहल जो नहीं भी कर रहे हैं, स्ट्रेस तो है ही ना, तो न्यूट्रिएंट्स इतना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हो रहा है, बिना ड्रिंकर्स को भी फैटी लिवर तो हो ही रहा है। तो वो सब कुछ लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि स्पर्म्स आर आल्सो अफेक्टेड। सो अगर ज़्यादा अफेक्टेड हो, 0 स्पर्म है तब भी IVF होगा। एंड एनोवेशन, PCOS, बहुत ज़्यादा PCOS D हो विच इज़ नॉट करेक्टेड विद मेडिकेशन, तब भी PCOS, मतलब लाइक इफ वी सी 100 पेशेंट्स विद PCOS, 15 to 20% को मे बी IVF की जरूरत पड़े।
80% are corrected with medication. And endometriosis, मतलब endometriosis के symptoms बताते हैं because you see often your colleagues and all कि पीरियड बहुत पेन आते हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स की छुट्टी लेते हैं पड़ती है, मतलब स्कूल की टीचर्स आती हैं कि स्कूल से मुझे ऑफ लेना पड़ता है मैम, मैं जा ही नहीं पाती, और पीरियड्स आने से पहले पेन शुरू हो जाता है. वन सिम्टम व्हेन दे मेक फिजिकल कांटेक्ट विद द हस्बैंड दे गेट पेन, और पीरियड्स जैसे ही खत्म होते हैं द पेन इज सबसाइड, बट दैट पेन इज सो ग्रेट, थोड़ी बहुत तो सबको होती है, दैट इज नॉर्मल बिकॉज योर यूट्रस इज कनेक्टिंग. बट एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को बहुत सीवियर कि दे हैव टू टेक इंजेक्शंस अराउंड. And unexplained infertility, sometimes the patient is सारे टेस्ट करवा लिए, everything is normal, still they are not able to conceive, still IVF is required. Another indication like for example like बिल्कुल खत्म हो गई, menopause हो गया, जेनेटिक किसी को बीमारी है, बिकॉज अगर किसी की फैमिली बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं किसी का, या समटाइम्स द पेशेंट पे एक बच्चा ऑलरेडी इफेक्टेड है, दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, या माँ बाप में कोई जेनेटिक सिंड्रोम है, दे डोंट वांट द किड, दैट टाइम आल्सो IVF with PGS जेनेटिक टेस्टिंग इज एडवाइज्ड. सो ये IVF का प्रोसीजर है कि स्टार्टिंग में वी गेट सम टेस्ट एंड देन वी गिव इंजेक्शंस फॉर 10 days. आज मतलब फिर हम OT के अंदर जस्ट हाफ एन आवर प्रोसीजर से वी टेक आउट एग्स फ्रॉम देयर बॉडी, देन वी फर्टिलाइज, स्पर्म हस्बैंड से लेते हैं, देन वी फर्टिलाइज देम एंड आफ्टर 3 to 5 days वी पुट बैक इनटू योर यूट्रस. जो एक काम बॉडी के अंदर होता है वी डू इट इन आवर लैब. सो मेल इनफर्टिलिटी का और मेल्स तो है नहीं हमारे पास, वी कैन स्किप दैट. Still we have so many males around us. Okay, so We should. okay, so alcohol and cigarette common. Varicocele ignored कि नीचे मैम स्वेलिंग है, इग्नोर की थोड़ी सी थी. सो अच्छा, बहुत सारे मेल्स को इंजरी हो जाती है, जैसे मेरे कजन्स वगैरह को, जैसे फ्रेंड्स में वो जिम जाते हैं तो भी. देखो एक और चीज़ ज़्यादा ना, मैं एक और चीज़ बताऊँ, जब हमारे पेशेंट कभी कपल एंटर करते हैं ना, तो बहुत सारे जिम वाले आते हैं ना, हमें पहले बताओ तो मेल इनफर्टिलिटी होगा, बिकॉज वो भी मैं बता रही हूँ, बिकॉज दे टेक सो मैनी सप्लीमेंट्स. वही मैं कह रही थी, Yes. प्रोटीन पाउडर्स और ये Protein, BCG एंड ऑल. ये जो इंजेक्शंस भी लेते हैं ना बहुत जल्दी, बिकॉज आप 2-3 महीने जाते हैं, मेरे ट्रेनर स्टार्ट टेलिंग ना बॉडी बनानी है, मेरी तरह बनानी है, मेरी तरह इंजेक्शन, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दे स्टार्ट बट गिविंग वो देम. टेस्टोस्टेरोन टैबलेट्स भी खाना है. खाते हैं यही सारे स्टेरॉइड. देखिए स्टेरॉइड जो है ना, it gives a feeling of very well being, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं मैचो मैन हूँ, एंड देन when we check their sperms it's zero sperm. Is it safe? No, they are not safe. We always even supplements मैं बोलती हूँ कि जब sometimes the patient they say ना मैम मैं तो जिम जाता हूँ बट मैं ना 2 scoops तो लेता हूँ प्रोटीन के, सुबह 2 शाम को. मैंने कहा कौन सा प्रोटीन है जिसमें स्टेरॉइड नहीं होंगे. समटाइम्स अनलेबल्ड प्रोटीन डाला जाता है क्योंकि रिजल्ट्स नहीं शो करेगा तो who will buy them again. ये मेल इनफर्टिलिटी जो है ना, ये आई ऑलवेज सजेस्ट व्हेनेवर यू आर प्लानिंग जिम जाना है, जाओ, टेक प्रोटीन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. एग प्रोटीन आप चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं, यू कैन टेक दैट, बट डोंट गो फॉर एनी सप्लीमेंट, नॉट गुड, बिकॉज बहुत बार रिजल्ट्स शो करने के लिए दे पुट स्टेरॉइड एंड दैट वो आपके अंदर आपके पिस्टरी को ब्लॉक कर देता है, हार्मोन्स नहीं बनते एंड देन जीरो स्पर्म्स. अच्छा मैम, जो बच्चों के आजकल ये ग्रिप्सो एंड ऑल बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं. देखो ये ज़्यादा ना वो फीड्स वाले ज़्यादा बता पाएंगे, बिकॉज आजकल तो जब से वो फूड फार्मर आया है तो नाउ अभी इवन वी स्टार्ट लुकिंग एट द लेवल्स, तो थोड़ा सा. मैम मेरा बेटा भी लेता है ना प्रोटीन, जिम जाता है. अब हाउ कैन आई स्टॉप ये चीज नहीं, वो प्रोटीन मैं वही बोल रही हूँ ना कि बहुत बार हिडन चीज़ें एंड हैं. ऑल टाइम कि जब मैं उससे बोलती हूँ नहीं मम्मा कुछ इट्स सेफ, सेफ नहीं है, मैं वही बता रही हूँ ना कि जो भी आता है ना नहीं, माचो प्रोटीन ज़्यादा से- ऐसे वाले आते हैं ना, तो उन सबके स्पर्म जो है ना वो नॉर्मल काउंट हम 15 मिलियन मानते हैं, इट्स ऑलवेज 2 मिलियन 1 मिलियन, मतलब नॉर्मल के लिए वो ट्राई भी नहीं कर सकते. तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, बी अवेयर ऑफ दैट प्लीज. अगर कोई हो तो उनको मना करें, बिकॉज आपके नेचुरल जो हार्मोन्स है ना उसको सबसाइड कर देता है. टेस्टोस्टेरोन का काम बॉडी में टेस्टिस से ही बने तो वो काम करेगा. बाहर से आप ले रहे हो तो ब्रेन को तो सिग्नल गया कि भाई एक्सेस में हो गया, बंद कर दे ब्लॉकेज, तो वो नीचे
नीचे सारे हार्मोन्स ब्लॉक हो जाते हैं। Children are not understanding us ना कि Just show them some infertility वाली कोई वीडियो दिखा देना हमारी, दिखा देना कि मैं बच्चे हमको चाहिए नहीं पता ये सेफ है, मेरे फ्रेंड्स भी लेते हैं। उनको बोलो मुझे दादी बनना है भविष्य में। STD is very common, so Plant proteins are safe ना? Plant based protein. अब अंदर है क्या उसमें वो नहीं पता। If we are Yes, but label पढ़ के that then we can देखना। So age, कुछ एज के बाद इनके स्पर्म में भी एजिंग होती है, so important। एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल का मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का इम्पैक्ट तो है ही है। कुछ साइन है, देखिए अगर आपको हेयर ग्रोथ में चेंजेस लगे, वन साइन मेल्स के लिए, अगर कोई नीचे बाय चांस स्वेलिंग हो रही है तो डोंट इग्नोर दैट। और देयर माइट बी एब्नॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ, उनमें मैंने जैसे बताया gynecomastia, उनमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, तो कार्सिनोमा उनमें भी हो सकता है, सो डोंट इग्नोर दैट। सेक्सुअल डिसफंक्शन की इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है या डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, ये भी है, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी भी करता है ये सिम्टम्स। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिकॉज समटाइम्स द पेशेंट विल मैस्टरबेट टू मच दैट जब फीमेल के साथ करने की बात होती है दे आर नॉट एबल टू डू दैट। स्पर्म काउंट लेस देन 39 मिलियन, अगर आपका कभी भी स्पर्म, मेल्स का तो एक ही टेस्ट है इनफर्टिलिटी के लिए, जस्ट गेट योर स्पर्म टेस्ट, ठीक है। आगे ईट हेल्दी फूड, क्विट स्मोकिंग अल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट इनफ स्लीप एंड डोंट कीप लैपटॉप। ये भी हमने नोट किया कि कोविड के बाद सबने इनफर्टिलिटी इतनी हाई हो बिकॉज एवरीबडी वाज कीपिंग लैपटॉप। आई सजेस्ट दैट कि व्हाइट टेस्टिकल्स आर आउटसाइड द बॉडी टू बॉडी का टेम्परेचर से कम रखना, सो डोंट कीप योर लैपटॉप। कुछ फ्रेजेस भी होगी ना इसमें, हाँ जी, फ्रेजेस भी होंगी जो इफेक्ट करती हैं लैपटॉप से। वही हीट होती है, So टेम्परेचर। that's all from my side. Now you have any query, we can just इतनी बातें आपने रेगुलर रूटीन में चल ही रही है, सब आसपास हो ही रहा है। हम कहते हैं कि ये भूल जाएंगे लास्ट तक। गूगल बाबा, वो डॉक्टर गूगल जो है वो ऑलरेडी एवरीबॉडी नोज, बट स्टिल क्या करना है इतना जीके। नहीं वही है कि लिबरल लाइफस्टाइल हो गया। I was listening some comedian का कि मैं एक डाइट फॉलो करता हूँ, उसके अगले दिन आ जाता है ये खराब है, दूसरी फॉलो करता हूँ इसका ये साइड इफेक्ट है, मैं कीटो पे गया ये हो गया, ये वाली गया इंटरमिटेंट गया उसका ये हो गया, तो व्हाट टू फॉलो। आजकल तो जो भी पहले फिजिकल मतलब फिटनेस की तरफ जाता है, सबसे पहले प्रोटीन के लिए वो सजेस्ट ही होने लगता है तुरंत ही। नहीं तो नेचुरल, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज सजेस्ट कि व्हेन अगर आप मॉर्निंग में खा रहे हो ब्रेकफास्ट, हैव पनीर या सोया नट्स साथ में ले लो, उसके बाद आप स्प्राउट्स ले लो। तो डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन, बिकॉज आपका डाइट इज ऑलवेज डेफिशिएंट, बिकॉज हम मैक्सिमम इंडियंस आर वेजिटेरियन, तो हमारी डाइट में कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएंट ही होती है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज फील हंग्री। थोड़ी देर के बाद वी वांट चाय, स्नैक्स, बिकॉज हम प्रोटीन कीप्स यू फिल फॉर लॉन्गर। कीटो डाइट, Keto, देखो, I did that. I did that. I reduced here 18 kgs. I reduced. I stopped. कीटो डाइट में मेरा सभी हो जाती है ना। टेक 250 grams of almonds. So is it safe? 250 ग्राम almonds लेके दिन में एक ही बार कैसे खाते हैं? नॉर्मल ना, नहीं मेरी जैसी बात मेरी है। रेवोल्यूशन ने नहीं बताया मुझे। हो ही नहीं सकता। 250 ग्राम आमंड नहीं हो सकता, 25 ग्राम होगा। नहीं 250 ग्राम। 250 is too much. Small 15 minutes nutrition talk. I think the nutritionist can help you with all these queries Yes. in a better way and with some substitutes which are very healthy and natural for us. Yeah. So thank you. Thank you. So that's the reason. Very, very informative program. Thank you. So Thank you so much, ma'am. So before ma'am leaves, I would want ma'am to. और उसके साथ मैम का सबसे अच्छा बिहेवियर है। सबसे एक ये ना डॉक्टर के ना सबसे प्लस जो
पॉइंट है कि मैम का Humbleness. She's humble, she's very down to earth. I'm not saying just because she's right next to me, but from the day I met, whatever stress it is, whenever you look at her, she's always smiling. Yeah, she has a smiling face. Yeah, thank you so much. हम every day She protect the scene. the one thing is कि I'm into that field ना, I have to be like that. Because मैं घर पे चाहे लड़के आई हूँ, घर पे चाहे बच्चे को मार के आओ, या खुद किसी गाली मार के आओ, क्योंकि हमारे पास जो आएगा ना वो पेन में ही आएगा। Because मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहा है ना वो ऑलरेडी दुखी होगा, इनफर्टिलिटी वालों के पास किसी भी डॉक्टर के पास में पेशेंट आएगा ना वो नहीं, मेरे पास तो फिर भी इनफर्टिलिटी है ना, they already have so many things inside ना. I have to give them environment because certain things की bedroom talks है sometimes. I know. Because वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते what is happening because everybody is saying sometimes patient they come to me, ma'am everybody thinks that we are not planning. एक्चुअली क्या है हर डॉक्टर में ना हियरिंग